جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، یہ ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تب سے لے کر آج تک کسی بھی منتخب نمائندے نے ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ان پر کبھی کسی نے کوئی نظر نہیں ڈالی ہے۔ الیکشن کا دور جب آتا ہے، الیکشن کا جب موسم آتا ہے تو یہاں طرح طرح کے موسمی پرندے جو ہیں مختلف نعرے لگا کر یہاں آتے ہیں، لیکن میری عمر اس وقت تقریباً 50 سے ابو ہے، 50 پلس ہے۔ اس 50 پلس کے اندر یونین کونسل کے فنڈ سے لے کر ڈسٹرکٹ کونسل کے فنڈ سے لے کر ایم این اے جو ہمارا نمائندہ آتا ہے سالانہ، جس کے پاس کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے، اس کی ایک پیسہ ہمارے یہاں پر کسی ترقیاتی سکیم میں یا کسی مسئلے میں خرچ نہیں ہوا ہے۔ کہ بچوں کو بہت ہی مسائل ہیں۔ پرائمری پاس کرنے کے بعد اکثر بچیاں جو ہے وہ تعلیم سے محروم رہتی ہیں، آگے کہیں جا کر تعلیم حاصل کرنے کے وسیلہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، رشتہ داروں کے پاس وہ بیٹھ نہیں سکتی ہیں کیونکہ کلچر جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، تو اخراجات وہ والدین برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اکثر بچیاں جو ہیں وہ پرائمری پاس کرنے کے بعد یہاں پر ہی رہتی ہیں۔ تو گورنمنٹ والا سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر ممکن ہے، ممکن کیا ہے، ہو سکتا ہے اگر وہ گورنمنٹ چاہے تو پرائمری اسکول کو اپ گریڈ کر کے مڈل یا بلکہ ہائی تک لے جا سکتی ہیں، لیکن ہمارا نمائندے جو ہیں ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہونے کی وجہ سے پرائمری کی بچیاں جو ہیں وہ پرائمری پاس کرنے کے بعد اکثر جو ہے وہ تعلیم اپنی جاری نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میرے بزرگ نے بتایا ہے کہ یہاں پر سنگل کوئی پیراسٹامول بھی یہاں پر نہیں ملتی ہے، کسی کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے بھی بندہ کوئی نہیں ہے۔ ڈسپنسری جو ہے یہاں پر تقریباً 100 سے 150 گھرانے ہیں، بوڑھ گری اور شوت ملا کر یہاں پر تقریباً 150 گھرانے بنتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی ڈسپنسری یہاں نہیں، ایک چھوٹا سا ڈسپنسر ہمیں اویلیبل نہیں ہے۔ جب کسی کو کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں گاڑی بک کر کے سر سے جانا پڑتا ہے، یا اس سے زیادہ پیچیدہ کوئی مسئلہ ہو تو پھر ہمیں ڈی ایچ کے گلگت جانا پڑتا ہے۔ مسائل ہیں کہ اسود روڈ نبو کی وجہ اسود کو بیمار بیمار بس بڑی مشکل دینی اللہ ہے کم سے کم 5-7 میل بس کراس ہری روڈ ہلادن درونس اسو کچھ سخت مسائل جو نقصان دہ مسائل ہیں۔ دوسرا اسود مسائل اوہن کے اسے جیسے بارار مثلا بیمار اگمن یہ کگمن او اسو کچھ اسپتال اگ یہ کگنوش جنس نہیں ہے گا اسو کچھ نوش ایک بلے نے چونی پوری ایک دو کوک اسو کچھ من آدم اگنوش انس جو بے محروم انس آنی جو بس رکھلے یا گلتے رہنس یا آنی رکھلے مریض بیدیو ام سسے پر ہرنس۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت ہرامش کے اندر کشوت ویلی میں ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے یوتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہم باقاعدہ ہائیکنگ ٹریکنگ کے پرپس سے ہم آج یہاں پہ آئے ہیں۔ ہم یہاں سے آج اشوگا کی طرف جائیں گے، اشوگا سے پھر لاٹوہرائے مرگ سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے جو ہے وہ اس سفر کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس وقت ہم پہنچے ہیں شوت میں، یہاں پہ ہمارے نوٹیبلز ہمارے ساتھ موجود تھے، یہاں کے مؤذن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہرامش کے اندر آ کے شوت ویلی میں کیا مسائل ہیں، روڈ کے حوالے سے کیا مسائل ہے، پھر اس کے علاوہ یہاں پہ صحت کی کیا صورتحال ہے، ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے، اس کے علاوہ یہاں کے جو عوام ہے، یہاں پہ جو لوگ بستے ہیں ان کے کیا ایشوز ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں کے ایک نوٹیبل ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں کے کیا ایشوز ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ماما تسنے رینو حوالہ جان مسائل ہیں نا حوالہ جکا اسو کچھ مسائل ہیں کہ اسود روڈ نبو کی وجہ اسود کو بیمار بیمار بس بڑی مشکل دینی اللہ ہے کم سے کم 5-7 میل بس کراس ہری روڈ ہلادن درونس اسو کچھ سخت مسائل جو نقصان دہ مسائل ہیں۔ دوسرا اسود مسائل اوہن کے اسے جیسے بارار مثلا بیمار اگمن یہ کگمن او اسو کچھ اسپتال اگ یہ کگنوش جنس نہیں ہے گا اسو کچھ نوش ایک بلے نے چونی پوری ایک دو کوک اسو کچھ من آدم اگنوش انس جو بے محروم انس آنی جو بس رکھلے یا گلتے رہنس یا آنی رکھلے مریض بیدیو ام سسے پر ہرنس بٹو جو اسورت تکلیف آتی دماغ تکلیف اسو کا وہی انا تکلیف ہیں وہی کہ ایل ہے کہ اسو نقصان دہ ایل خراب ہم اسو تانی ایل ہوا کہ سکت اسو کا نقصانی ہیں۔ تو باقی مسائل تو گہن لیکن اسو سکول ہے کہ مقصد بلڈنگ ایک بلڈنگ اسو کچھ تیار ہیں، اسو کچھ استاد کمی ہیں، استاد کے کم ہیں اور سکول رب اسو کچھ مثبت ہیں۔
अच्छा एक दूसरा मामा आने की ओवरऑल आने के अवामी मसाइल हैं हल तो की जिम्मेदारी हुकूमत ही हैं हुकूमत में जा एक इंतज़ामिया हैं एक दूसरा की असही अब मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं इस असही मसाइल हल थे बेस्ट रकून अक्सर करेगा इलेक्शन भी तो असही असही की मुंतखब रीबन अपना सियासतानी हैं ये हर दिशुवानन वो आनवे वोट हासिल तो क्या अर्थ वही सही मसाइल हल तो ठहरान लेकिन ऐसी बात आया अनिस की सही मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं असही अनिस जीत भी तुझे बात भाई ऐसे इलाकाई दौरत है ना इलाकाई मसाइल हल तुझे करते जे कम करते हैं ना हवाला जे तुझे करानो ने अनसे होला रहन के को चला कि न बनन जे जब तक यानी ने दुमोगी अगर मुझे इलेक्शन न आए मुझे रहना भाई ओ वक्त बस को नुमाइंदा कनो गामर न पाजूंगा तो असुट है कि सख्त तकलीफ है वोट हरी के काई से वन लेकिन फतीनिश हुए ऐसे मसाइल खोजम तुझे काई को नुमाइंदा मुझे सुके अच्छा मामा तो सने कि गवर्नमेंट है इनके जिम्मेदार रही हैं टाइम है कि ऐसे ही मीडिया वसात मजा की स्ट्रकन इनु करते तो जेक मुतालिबा था हुकूमत जो इंतजामिया जो केस अने शो तक करते कि मसाइल अनु हल तो कि करते जेक तो को वाजन बस ये तो गवाही नुमाइंदा से अन से रहते वो अगर को नुमाइंदा को तो और से अन से मसाइलों के जरूरत में के दिशे रिजेक्ट में है तो इन नवा तो फतुत असुका इजे खन मा बयानस बस आन रखिए कि बहुत बहुत शुक्रिया अपना मामू नाजरीन हमारे साथ हमारे शुद्ध गाँव के हमारे नोटेबल्स हमारे उस्ताद मोहतरम इमदाद चाचा हमारे साथ मौजूद थे उनसे हम पूछेंगे कि ओवरऑल हरामुश के अंदर शुद्ध जो गाँव है जहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा घराने हैं और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल इस गाँव के अंदर तालीम के हवाले से क्या सूरत हाल है फिर उसके अलावा यहाँ के जो समाजी मसाइल है उनकी क्या सूरत हाल है इस हवाले से हम अपना सर से पूछना चाहेंगे कि उस हवाले से कुछ अपने ओपिनियंस का इजहार करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर एक दूर अफ्तादा गाँव जो कि हरामोश वली का सबसे दूर अफ्तादा गाँव है और पसमानदा तरीन इलाका है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और हमसे इस गांव के मसाइल के बारे में गुफ्तशनीद कर रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि जब से हमने हो संभाला है जब से मैंने हो समझा ये हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं तब से लेकर आज तक किसी भी मुंतखब नुमाइंदे ने हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर कभी किसी ने कोई नज़र नहीं डाली है। इलेक्शन का दौर जब आता है इलेक्शन का जब मौसम आता है तो यहाँ तरह तरह के मौसमी परिंदे जो हैं मुख्तलिफ नारे लगा कर यहाँ आते हैं लेकिन मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 50 से अबो है 50 प्लस है। उस 50 प्लस के अंदर यूनियन कौंसिल के फ़ंड से लेकर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के फ़ंड से लेकर एमएनए जो हमारा नुमाइंदा आता है सालाना जिसके पास करोड़ों का बजट होता है उसकी एक पैसा हमारे यहाँ पर किसी तरक्याती स्कीम में या किसी मसले में खर्च नहीं हुआ है। आप लोगों ने रोड से गुजर कर आए हैं और हालत आपको पता है मुख्तलिफ जगहों से टूटा फूटा है दीवारें उसकी गिरी हुई हैं अंदर की जो सेफ्टी वाल है वो गिर चुकी है नदी नाले जो है वहाँ पर गाड़ी चलने के काबिल नहीं है। जैसे हमारे बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ पर हर किस्म की ट्रैफिक हमें इस्तेमाल नहीं चलवाना चाहिए सवाए मगर 4x4 जीप के अलावा यहाँ पर कोई गाड़ी आती नहीं है ठीक है ना। तो ये तो हमारे रोड का मसला है। दूसरा ये है कि हमारा इलाका जो है पानी की बहुत किल्लत है कुल बनी हुई है मुख्तलिफ जगहों से टूटी फूटी है आवाम अपने आप के तहत यहाँ से पानी लाते हैं लेकिन वो मौसमी हालात में जो हालिया बारिशों के दौरान ही मुख्तलिफ जगहों से टूटी हुई है पानी जो है वो बारिश का पानी आता है तो वो ज़ाया होता है। तो आज तक एक पैसा सिंगल पैसा जो है वो इस स्कूल पर नहीं लगा है। अच्छा इसके अलावा तालीमी मसला ये है कि एक सेफ स्कूल गर्ल्स का चलता है एक प्राइमरी स्कूल बॉयज़ का चलता है और एक अभी 2 साल हो गए हैं एक प्राइमरी स्कूल जो है बॉयज़ का अपग्रेड हुआ है लेकिन अभी तक कोई क्लासेस का इजरा नहीं हुआ है। यहाँ पर अफ्तादा गाँव होने की सूरत में यहाँ के बच्चों को बहुत ही मसाइल है। प्राइमरी पास करने के बाद अक्सर बच्चियाँ जो है वो तालीम से महरूम रहती हैं आगे कहीं जाकर तालीम हासिल करने के वसीला उनके पास नहीं होता है रिश्तेदारों के पास वो बैठ नहीं सकती हैं क्योंकि कल्चर जो है वो ज़माने के साथ साथ तब्दील हो रहा है तो अखराजात वो वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए अक्सर बच्चियाँ जो हैं वो प्राइमरी पास करने के बाद यहाँ पर ही रहती हैं। तो गवर्नमेंट वाला से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मुमकिन क्या है हो सकता है अगर वो गवर्नमेंट चाहे तो प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल या बल्कि हाई तक ले जा सकती हैं लेकिन हमारा नुमाइंदे जो हैं हमसे हमारे साथ मुखलिस नहीं होने की वजह से
प्राइमरी की बच्चियां जो हैं वो प्राइमरी पास करने के बाद अक्सर जो है वो तालीम अपनी जारी नहीं रख सकती हैं। इसके अलावा जैसे मेरे बुजुर्ग ने बताया है कि यहाँ पर सिंगल कोई पैरास्टामोल भी यहाँ पर नहीं मिलती है, किसी का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए भी बंदा कोई नहीं है। डिस्पेंसरी जो है यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 घराने हैं, बूढ़गिरी और शुद्ध मिलाकर यहाँ पर तकरीबन 150 घराने बनते हैं, लेकिन एक छोटी सी डिस्पेंसरी यहाँ नहीं, एक छोटा सा डिस्पेंसर हमें अवेलेबल नहीं है। जब किसी को कोई छोटा सा मसला होता है तो यहाँ से हमें गाड़ी बुक करके सर से जाना पड़ता है, या इससे ज़्यादा पेचीदा कोई मसला हो तो फिर हमें DHQ गिलगित जाना पड़ता है। तो हम हुक्मा बाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो सेहत के मसाइल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक छोटी सी डिस्पेंसरी का काम में लाया जाए, ताकि लोगों के जो बुनियादी सेहत के मसाइल हैं वो आसानी तो है उनके घर के दरवाजे घर के दहलीज पर हल हो सकें। इसके अलावा मसाइल तो बहुत है। मार्केटिंग का सिस्टम है, लोग सब्जियां उगाते हैं, रोड की हालत ठीक नहीं होने की वजह से इनका जो सब्ज़ी है वो अच्छे दाम पर नहीं बिकती है, लोग गलत फ़ायदे उठाते हैं, ट्रैफिक वाले गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो कारोबार करते हैं वो गलत फ़ायदा उठाते हैं रोड की वजह से। रोड ख़राब है कि बनाकर अगर रोड सही हो तो हर गाड़ी यहाँ पर आएगी, इन लोगों का कारोबार चलेगा, इनकी मैशत मजबूत होगी। जब मैशत मजबूत होगी तो इनके जो खुशहाली आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है माल मवेशी पालते हैं, तो माल मवेशी का भी हाल है। अगर बकरियाँ बीमार होती हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कौन सी बीमारी है। तो हर जगह में जैसे खलतौर है, दूर अफ्तादा गाँव है, वहाँ का एक मैंने पिछले साल आया था, उसने वहाँ पर डिस्पेंसरी एनिमल डिस्पेंसरी बनाया है, लेकिन हमारे पास मैंने हमारा फेवर का नहीं होने की वजह से हमारे पास ना एनिमल डिस्पेंसरी है ना ह्यूमन डिस्पेंसरी है। तो अगर हुक्म वाला से हो सकता है तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग माल मवेशी पकते हैं। अभी ही एक वबा फैली है बेलों की, पता ही नहीं चलता। शाम को जब बेल मवेशी खाने में जाते हैं तो बेल ठीक ठाक होते हैं, सुबह जो है वो मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे हुक्मा वाला से रिक्वेस्ट है कि हमें एक सिविल डिस्पेंसरी और एक एनिमल डिस्पेंसरी का बंदोबस्त किया जाए। अच्छा, दूसरा ये है कि कोरोना की आपको पूरी दुनिया जो है कोरोना का उसमें हिज्जत में है। तो हमारे जो स्टूडेंट जितने भी हैं पाकिस्तान भर से या दुनिया भर में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, नेट के हवाले से यहाँ पर सिंगल सिग्नल ही नहीं आता, कॉल ही नहीं होती। कॉल करने के लिए हमें ससी जाना पड़ता है या आगे जगलोट जाना पड़ता है। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं सैकड़ों की तादाद में, बल्कि पूरे हरामोश के अंदर सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट जो है वो इंटरनेट के फैसिलिटी से महरूम है। तो हुक्मा बाला से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हो सकता है तो यहाँ पर कोई पोस्टर, छोटा सा पोस्टर अगर यहाँ पर लग जाए तो ये जो बच्चे ऑनलाइन का जो सिस्टम है, क्लासेस का सिस्टम है, उससे ये आसानी से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो आपका हाँ, रोड का कूली देखो तकरीबन 30 साल हो गया, इसका अभी PC4 नहीं बना है। सिंगल एक कुली महत्व उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। पिछले दिनों 3 बच्चों को अपॉइंट किया था, वो टेम्परेरी तौर पर यार क्या कहते हैं उसको 411 कहते हैं, क्या कहते हैं, इस तरह अपॉइंटमेंट किया था, अभी उनको भी निकाला है। तो रोड की आपने हालत देखा है कि वहाँ पर एक सिंगल कुली भी नहीं है। अगर कुली का बंदोबस्त हो तो ये रोड जो है थोड़ा सा मेंटेन होगा तो लोगों के लिए भी आसानी होगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज माउंटेन टीवी की मैं बहुत मशकूर हूँ कि जिसने हमारे इस बैकवर्ड इलाके में आके हमारे लोगों के मसाइल पूछने पे मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ऐसे इलाकों को लोग तरजीह नहीं देते हैं। समर अब्बास कज़ाफ़ी साहब की बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने आके हमारे इस लायक समझ के हमसे पूछ लिया कि हमारे इलाके के मसाइल क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं अपने इलाके के लोगों की वसातत से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये हेल्थ से स्टार्ट करूँगा, एजुकेशन से फिर वो आगे चलेंगे। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक यहाँ फ़र्स्ट एड, कोई हॉस्पिटल तो छोड़ो, फ़र्स्ट एड के लिए कोई डिस्पेंसरी अभी तक नहीं है। इलेक्टेड नुमाइंदे आते हैं यहाँ आके लोगों को कहते हैं कि हम इस दफ़ा ADP में रखा है, लेकिन आज तक कोई ऐसी ADP नहीं नज़र आए जिस पे हमारी डिस्पेंसरी बनी। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन के लिहाज से स्कूल तो बहुत बने हैं हमारे यहाँ पे, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, असातिज़ा भी हैं, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से एजुकेशन के भी बड़े मसाइल हैं। इंटरनेट आजकल तमाम दुनिया में जो है कोरोना वायरस की वजह से लोग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स बंद हैं। तमाम एक्टिविटीज़ जो है इंटरनेट के ज़रिए होती हैं। इंटरनेट की सहूलत बिल्कुल नहीं है, इवन कि मोबाइल नहीं चलता, सिग्नल नहीं है, टावर शावर कोई नहीं लगा है।
یہ تمام مسائل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ روڈ کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل. روڈ کا جو ہے بارشوں کی وجہ سے روڈ بالکل خراب ہے. پچھلی دفعہ الیکشنز کے دوران ہمارا جو الیکٹڈ نمائندہ ہے سید سہیل عباس، اس کو ہم نے اپنے ساتھ لا کے گاڑی میں بٹھا کے اس کو کہا کہ ہمارے روڈ میں یہ مسائل ہیں، آپ خود دیکھیں، بعد میں نہ کہنا کہ یہ جو آپ کا روڈ صحیح ہے فلاں ہے میں نے نہیں دیکھا. ان بہانوں سے اس کو دور رکھنے کے لیے ہم نے اپنے ساتھ لا کے گاؤں کا چکر بھی لگوایا. روڈ کی بھی ہم نے اس کو کہا کہ یہ روڈ آپ نے بنوانا ہے. اس اے ڈی پی میں اس نے کہا کہ تمام پروجیکٹس جو ہیں میں نے دنیور، اوشکن اور جلال آباد کی طرف دیا ہے. نیکسٹ اے ڈی پی جو ہے میں ہراموش اور چھمگڑ کے لیے رکھوں گا. دیکھتے ہیں اس دفعہ کوئی پروجیکٹ ہمیں نہیں ملا ہے. اگلی اے ڈی پی میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ روڈ اور آگے پیچھے یہاں سے 2.5 کلومیٹر کا روڈ بھی میں نے مینشن کروایا، باقاعدہ لیٹر میرے پاس ہے، لیکن اے ڈی پی میں نہیں رکھا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں پانی کی بہت قلت ہے. ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو پول ہے اس کو مین واٹر چینل کو جو ہے نا سیمیٹڈ کنکریٹ اچھی چینل بنا کے ہمیں دیتے تاکہ لوگوں کو پانی کے مسائل جو ہے نا کم ہو جائے. اس کے علاوہ بہت سارے مسائل اور بھی ہیں. لنک روڈ کا میں نے کہا نا 2.5 کلومیٹر کا لنک روڈ میں نے جو ہے اے ڈی پی میں دیا ہے. فروٹ سبزیاں جو ہے ابھی ہمارے پاس دیکھو آلو ہم کاشت کرتے ہیں، سب سے اچھا آلو ورائٹی کے آلو ہمارے گاؤں میں، شمیلا مرچ جو ہے ہمارے گاؤں میں، سبزی ہمارے گاؤں میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کی سبزیاں، انار، خمانی، اخروٹ، سیب، تمام اچھے قسم کی کوالٹی کے فروٹس ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹنگ میں بالکل ہماری فروٹس بکتے نہیں ہیں، کیونکہ ہر چیز سڑ جاتا ہے، سستے داموں بکتا ہے. آلو کاشت کرنے کے لیے ہم بہت ساری مجبوریاں اس لیے ہیں کیونکہ ہم آلو کو کاشت کریں گے لیکن کیسے لائیں؟ روڈ نہ ہونے کی وجہ سے آلو بھی ہم کاشت نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ تمام مسائل ہیں. بہرحال پھر بھی ہم سمر عباس قذافی کا بڑے مشکور ہیں کہ اس نے ٹائم دے کے ہم سے ہمارے حالات کا پوچھ لیا. اگر سب سے پہلے بیسک ایشوز کی بات کی جائے تو یہاں پہ ہیلتھ کا ایشو ہے. ہیلتھ کا یہ ہے کہ یہاں پہ اب دیکھو 100 کلومیٹر کے فاصلے پر اور جو 10-15 کلومیٹر جو روڈ ہے وہ کچا روڈ ہے. تو یہاں پہ جب بھی کوئی ڈیلیوری ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی بوڑھا ہو جو مطلب پیدل نہیں چل سکتا ہے، تو یہاں پہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، مطلب ایک غریب بندہ مطلب 5 سے 10 ہزار پے کر کے اس کو یعنی ہاسپٹل تک نہیں پہنچا سکتا ہے. تو ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ کوئی ڈسپنسری یا پھر کوئی دوسرا الٹرنیٹ سولوشن دیا جائے. اگر دوسرے ایشو کی بات کی جائے تو یہاں پہ یعنی انٹرنیٹ کا ایشو ہے. انٹرنیٹ کا یہ ہے کہ آج کل کرونا جو ہے وہ پیک پر ہے. تو ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں کوئی ایسا سولوشن دیا جائے کہ چھٹیوں پہ لوگ اسلام آباد، کراچی اور دوسرے ملک کے شہروں سے جب لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کے لیے اب گورنمنٹ سے ہماری اپیل یہ ہے کہ کوئی انٹرنیٹ کا ہمارا جو ایشو ہے اس کو ریزولو کیا جائے. تیسرے ایشو کی بات کی جائے تو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. ایجوکیشن کا یہ ہے کہ 5ویں تک یہاں پہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد یعنی سٹی چلے جاتے ہیں. تو غریب والدین ہیں، ان کی مطلب میکسیمم آمدن 20 سے 25 ہزار ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، آدھی آمدن جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر صرف کرتے ہیں. جس کے 4 سے 5 بچے ہوتے ہیں وہ مطلب خود نہیں کھا کے اپنے بچوں کو صرف کرتے ہیں. تو یہ ایشو ہمارے گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ مڈل یا میٹرک تک سکول دیا جائے تاکہ ہمارے بچے جو یہاں پہ ہی تعلیم حاصل کریں گے. اس کے بعد مطلب FSC یا مطلب یونیورسٹی لیول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ شہر چلے جائیں گے تو کم سے کم کسی حد تک یعنی والدین کے اوپر زیادہ برڈن جو ہے وہ اس سے یعنی کم ہو سکتا ہے. اور بھی ہمارے گاؤں کے بہت سارے ایشوز ہے. اگر بات کی جائے تو یہ واٹر چینل ہے، روڈ ہے. ہمارے گورنمنٹ سے یہی مطلب مطالبہ ہے کہ جو روڈ میں جو ہمارے جو مزدور ہے وہ کوئی مزدور نہیں ہے. تو گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ کوئی 2-3 مزدور لگا دے تاکہ ہمارا روڈ جو ہے روڈ کا ایشو ہو، جو مینٹیننس کا ایشو ہے وہ ریزولو ہو جائے. تھینک یو. جو مسئلہ ہے وہ یہاں کا روڈ کا ایشو ہے. تو روڈ کے ایشو کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً 6-7 کلومیٹر کا جیسے مین روڈ سے شروع تک اتنا روڈ ہے. یہاں پر مینٹیننس کے لیے یہاں پر کوئی کلی یا اس طرح کا کوئی ملازم نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں پر مشکلات پڑتی ہے. گندم لاتے ہیں، آگے سے خریداری کے لیے یہاں پر چیزیں لاتے ہیں. دوسرا ایشو یہ واٹر چینل کا اندر سے نالے سے لے کر گاؤں تک جتنا جو نالا ہے اس میں صفائی کے لیے کوئی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کرتی ہے. تو اس سے تیسرا جو ایشو ہے یہاں کا ہیلتھ کا. ہیلتھ یہاں پر تقریباً شیوت بورڈنگ کے 100 گھرانے ہیں.
तो 100 घरानों में से यहाँ पर न डिस्पेंसरी है, ना कोई इस तरह की कोई हेल्थ की कोई सहूलत नहीं है। डिस्पेंसरी मौजूद है लेकिन यहाँ पर कोई दवाई या कोई डॉक्टर इस तरह की कोई सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो सब ये बीमारी या कोई लेडीज़ की कोई प्रेगनेंसी होती है इसमें गिलगिल ले जाते हैं, या सस में भी कोई ऐसी सहूलत नहीं है। चौथा जो इशू है यहाँ का एजुकेशन का है। एजुकेशन में यह है कि यहाँ पर प्राइमरी तक स्कूल है लेकिन मिडल तक बॉयज़ का स्कूल है ना गर्ल्स का स्कूल है, जिसकी वजह से यहाँ के गरीब लोग जो है वो अपने बच्चियों को गिलगिल ले जाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो देखिए ख़ासतौर पर जहाँ पे कोरोना पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे न सिग्नल आते हैं शुद्ध हिरामोश में, न कुछ नेट की फैसिलिटेशन है। तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है नेट न होने की वजह से अपनी तालीम पे सफ़र है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि जहाँ पे शुद्ध हिरामोश में नेट की फैसिलिटेट करे ताकि वो अपनी एजुकेशन जो होगी इसको सही से यानी मेंटेन करे। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ शुद्ध के जो नोटेबल्स थे, यहाँ के मुअज्जिन थे, उन्होंने अपने मसाइल के हवाले से जो है वो तफसीली जो है वो आगाह किया। यकीनन यहाँ की जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है। गिलगित से तकरीबन 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़या ये जो गांव है हराम शुद्ध, यहाँ पे तकरीबन 200 से ज़ायद घराने हैं और सैकड़ों तलबा यहाँ पे जो है वो ज़ेर तालीम है। यहाँ पे जो सबसे जो इंतहाई तशवीशनाक जो बात हमें लगी वो ये कि यहाँ पे प्राइमरी तक जो है वो स्कूल है अब हमारी फ़ीमेल्स का, हमारी बच्चियों का। उसके बाद यहाँ पे स्कूल नहीं होने की वजह से हमारी जो बेटियाँ हैं वो अपनी तालीम से जो है वो महरूम हो जाती हैं और तालीम को खैरबाद कहती हैं। यकीनन ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर यूनिसेफ और पूरे पाकिस्तान में जो है वो इस हवाले से बच्चों की तालीम के हवाले से स्पेशली काम हो रहा है, लेकिन इस वक्त हराम शुद्ध की जो गाँव है उसको जो है उससे नज़रअंदाज किया गया है। हमारी सबसे पहला ये मुतालिबा होगा हुकूमत पाकिस्तान से, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कि वो फौरी तौर पे यहाँ पे जो है वो फ़ीमेल एजुकेशन के ऊपर बच्चों की जो स्कूल है उसको अपग्रेड करने के हवाले से इक़दाम उठाएँ। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन जो इशू है वो रोड का है। डेफिनेटली सिकरदो रोड से हरामुश से वो लिंक करता है, वहाँ से यहाँ से तकरीबन आधे घंटे के डिस्टेंस पे हम यहाँ पे शुद्ध वैली में हम पहुँचते हैं, जो कि कच्चा रोड है। यहाँ रोड बने हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई कुली यहाँ पे तैनात नहीं किए गए हैं। उसके अलावा रोड की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इंतहाई जो है वो रोड की हालत जो है वो इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो खूबसूरती है, यहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ की जो ऑर्गेनिक फल फ्रूट हैं, यहाँ की जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। हुकूमत अगर इस रोड को बहाल करे तो यकीनन यहाँ के जो फल फ्रूट्स हैं, यहाँ की जो सब्ज़ियाँ हैं, फ्रेश सब्ज़ियाँ मार्केट तक एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोगों की इकॉनमी जो है वो बेहतर हो सकती है, लोगों की माशी हालत बेहतर होगी, जिससे इलाका जो है वो तरक्की कर सकता है। इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं हेल्थ के हवाले से, यकीनन इंसान की सेहत जो है वो बुनियादी ज़रूरत है। यहाँ पे सेहत की जो सूरत हाल है वो भी इंतहाई तशवीशनाक है। यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग तकरीबन हज़ारों रुपए खर्च करके वो गिलगित शहर की तरफ जाते हैं या तकरीबन सस वैली की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो लोगों को बेपनाह मुश्किलात हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हम अपने इस चैनल के वसातत से ये कहना चाहेंगे हुकाम बाला को कि वो फौरी तौर पे यहाँ के अवाम भी जो है वो शुद्ध के अवाम वो भी यहाँ के जो है वो पाकिस्तान के शहरी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। वैसे तो हमें कहा जाता है कि 18वीं सदी के बारे में तो हम सुनते हैं कि पत्थरों में लोग रहते हैं, लेकिन आज हमें यहाँ पे आके ऐसा लगा कि यकीनन जो है वो आज भी जो है वो हराम शुद्ध के लोग जो है वो 18वीं सदी में हम अगर कहें तो ये बजा नहीं होगा। इसका जो मेन ज़िम्मेदार है वो गवर्नमेंट ही है, क्योंकि कोई भी रियासत जो होती है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ रियासत अपने जो अवाम है उनको बेसिक नेसेसिटीज़ फराहम करे। हम अपने चैनल की वसातत से एक बार जो है वो फिर हुकाम वाला से मुतालिबा करेंगे कि यहाँ के जो अवाम है वो भी इंसान है, उनके भी बेसिक राइट्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पे यहाँ के अवाम को हल किया जाए। इंशाअल्लाह हमारा ये सफ़र जारी है। नाज़रीन, हम आपको किसी और जो है वो गाँव में हम जाके वहाँ के इश्यूज़ के ऊपर, वहाँ के मसाइल्स के ऊपर हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।